Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to your online second year section A English class by Mrs. Alia Musharraf, AP English, Government Degree College for Women, Muslim Town, Rawalpindi. As all of you are very well aware of the current situation of COVID-19 pandemic, in this scenario, this was the most suitable way suggested by the government for saving your precious lives and time. I hope all of you will avail this opportunity with every possible effort in order to achieve good marks. Now we will start our lecture. The name of the textbook for your second year class is English Book 2, Modern Prose and Heroes, selected by Dr. Muhammad Sadiq, Punjab Curriculum and Textbook Board, Lahore. And the name of the second book is Goodbye Mr. Chips. It is a novel by James Hilton, Punjab Curriculum and Textbook Board, Lahore. For grammar book, Simple Grammar Part 2 will be suitable for you. The paper pattern and division of marks will be discussed first. You have to attempt 100 marks paper, in which 20 marks will be for objective type paper and 80 marks will be for subjective type. Now we will discuss in detail the subjective type paper. Question number 1 will be from Modern Prose section of your textbook and it will carry 12 marks. Question number 2 will be from Heroes section of your textbook and it will carry 12 marks. Question number 3 will be from novel Goodbye Mr. Chips and it will carry 16 marks. And it is the last question of your section A, subjective type. Section 2 of subjective type of your paper will be grammar section. The first question in this section will be of essay writing and it will carry 15 marks. The next question will be from idiom/phrases from your grammar book and it will carry 10 marks. And the last question will be of translation of paragraph from Urdu to English and it will carry 15 marks. The objective type paper will be discussed in detail later. Now we will start our first chapter. The name of the first chapter is The Dying Sun. In this essay, Sir James Jeans describes the size of the sun as compared to the earth and the universe. He says that there are countless stars in the universe and most of them are bigger than the sun. The stars travel in the universe million miles away from each other and they rarely come close. He says that some 2000 million years ago, a wandering star came near the sun. Its gravitational pull creates a huge tide on the surface of the sun. It became so huge that it burst and its pieces fell in the space. And these torn pieces of our sun began to move around the sun. These are the planets of which our earth is one. Then the writer explains how the life started on the earth. No one knows exactly about the beginning of life, but it is assumed that the life started in simple unicellular organisms and later it kept on changing into complex generation like humans. He further says that life can only exist under suitable conditions and these conditions are only present on the earth. Life exists on earth
alone because it needs suitable physical condition, the important of which is temperature, that is neither too hot nor too cold. The temperature must be such where matter could remain in the liquid form. In this universe, stars are too hot to permit life to appear at all. Only the earth possesses the suitable conditions for the existence of life. The universe appears frightening when we compare the littleness of earth to the immensely vast universe. The writer concludes that our universe, especially our earth, does not seem to have any purpose in the creation of universe. It is the result of an accident, and according to writer, the appearance of life on earth is also accidental. But here I will not agree with the writer's conclusion. Being Muslim, it is our strong faith that the creation of universe is not accidental and by chance. It has certain serious purpose behind it. Now I will explain this brief introduction of your first chapter into Urdu so that you can get a clear picture of this chapter. जैसे जो आपके चैप्टर का नाम है, टाइटल है द टाइंग सन, इसका मतलब है डूबता हुआ या फना होता हुआ सूरज। और इस एसे में, ये एक साइंटिफिक एसे है, उस एसे में सर जेम्स जीन्स जो हैं उन्होंने हमें सूरज के साइज़ के बारे में बताया है जब हम इसे कंपेयर करते हैं अपनी ज़मीन के साथ और इस पूरी कायनात के साथ। इसके अलावा वो ये भी बताते हैं इस चैप्टर में कि इस वसी व अरीज़ कायनात में काउंटलेस स्टार्स हैं, यानी लातादाद सितारे हैं, जिनमें से बहुत सारे सितारे आपके सूरज से भी बड़े हैं। और इसके अलावा ये बताते हैं कि जो सितारे हैं ये कायनात में ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं एक दूसरे सितारे से कई मिलियन मील दूर। और शाज़ व नाज ही कभी ऐसा होता है वाक़या कि ये एक दूसरे के करीब आएँ। लेकिन तकरीबन 2000 मिलियन साल पहले एक घूमता हुआ सितारा इसी तरह से सूरज के करीब आ गया और उसकी जो ग्रेविटेशनल पुल थी उसने सूरज की ज़मीन के ऊपर एक बहुत बड़ी सारी टाइड या लहर जिसको आप कहते हैं वो उसने प्रोड्यूस की। और ये लहर इतनी बड़ी हो गई कि सूरज के करीब आने से सितारे के आखिरकार ये लहर टूट कर खला में बिखर गई, टुकड़े टुकड़े होकर। और ये जो टुकड़े थे टूटे हुए, हम उससे जो है वो प्लैनेट्स की इब्तिदा हुई, जिनमें से हमारी ज़मीन जो है वो एक प्लैनेट है। उसके बाद आपका जो राइटर है वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी शुरू हुई। हम में से कोई भी नहीं जानता कि ज़मीन पर ज़िंदगी किस तरह शुरू हुई, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ अख़ज़ किया जा रहा है कि शायद ज़िंदगी जो है वो कोई सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के तहत शुरू हुई और बाद में इसने कॉम्प्लेक्स जनरेशन लाइक ह्यूमन जो है वो शक्ल इख्तियार कर ली। वो मज़ीद ये कहता है कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर वजूद में आती है जहाँ पर मुनासिब हालात हों, ठीक है जी, और कुछ कंडीशंस हों जैसे कि आपकी ज़मीन पे मौजूद हैं। और ज़िंदगी जो है वह ज़मीन पर सिर्फ़ इसलिए वजूद में आई क्योंकि यहाँ पर वो जो मुनासिब फ़िज़िकल कंडीशंस थी वो मौजूद थी, और जिसमें से सबसे अहम कंडीशन जो है वो दर्जा हरारत, टेम्परेचर होता है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। और जो टेम्परेचर है वो ऐसा हो जहाँ पर कोई भी मैटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में अपने आप को बरकरार रख सके। इस कायनात में सितारे जो हैं वो इतने गर्म हैं कि वहाँ पर ज़िंदगी की इजाज़त हो ही नहीं सकती। सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन जो है वो उन मुनासिब कंडीशंस को शो करता है जहाँ पर ज़िंदगी की एग्जिस्टेंस हो सकती है। इसके अलावा जो कायनात है वो हमें बाज़ औक़ात बड़ी खौफज़दा कर देने वाली नज़र आती है जब हम उसका तकाबुल करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं
अपनी ज़मीन के साथ, क्योंकि इतनी वसी व अरीज़ कायनात में उसने मिसाल देते हुए कहा कि अगर आप सारी दुनिया के समंदरों की जो रेत है साहिल की उसको जमा कर लें आप, तो उस रेत के ज़र्रों में से एक ज़र्रा सिर्फ आपकी ज़मीन है इस वसी व अरीज़ कायनात में। और आखिर में राइटर जो है वो कंक्लूड्स करता है कि जो हमारी जो कायनात है, ख़ास तौर पर उसमें जो हमारी ज़मीन है, वो ऐसा लगता है कि उसका कोई ख़ास मकसद नहीं था वजूद में आने का, बल्कि वो हादसाती तौर पर वजूद में आ गई, जिसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमें थोड़ा सा इख्तलाफ होगा बीइंग मुस्लिम, क्योंकि कायनात जो है वो कैसे इतनी बड़ी कायनात बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी सूटेबल पर्पस के वजूद में आ सकती है। इसका यकीनन इट हैज़ डेफिनेटली अ सीरियस पर्पस बिहाइंड इट। ठीक है जी, ये आपका पहले चैप्टर की मुख्तसरन उर्दू में भी समरी है। आपको मैंने लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन इसलिए नहीं करवाई कि सेकंड ईयर में आपकी लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन नहीं आती। आपको सिर्फ रीडिंग करने से आपने अब इस पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है, ताकि आपको दोबारा सही सिरे से ये बात समझ में आ जाए। और उसके बाद जो है फिर मैं इंशाल्लाह ताला इसके क्वेश्चन आंसर्स भी वन बाय वन मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी। और उसके साथ साथ बच्चों अपने सिंपल ग्रामर अपनी कोशिश करें कि आप ख़रीद लें जितना जल्दी हो सके, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। और उसमें से फिर आपने जो है वो एसेज अपने स्टार्ट करने हैं याद करने, और वैसे आपका काफ़ी टाइम लेंगे। उसके अलावा आपने ट्रांसलेशन भी करनी है उर्दू से इंग्लिश में। उसके लिए आपको फ़र्स्ट ईयर में मैं सारे टेंसेस करा चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर आपको दोबारा रिवाइज़ करवा दूँगी। और उसके साथ साथ बच्चों उसमें ईडियम्स होंगी सिंपल ग्रामर में, वो आपने जैसे आपने फ़र्स्ट ईयर में पेयर ऑफ वर्ड्स डेली के 5 आप याद करते थे, आपने ईडियम्स को भी इसी तरह से आपने डेली 5 ईडियम्स जो है वो तैयार करने हैं। कल से अगर आप शुरू करती हैं, यानी 15 जून से अगर आप स्टार्ट करती हैं, तो ये आपके एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी ये 80 ईडियम्स डेली के हिसाब से आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, साथ साथ तैयारी कीजिए अपनी। इसी तरह से रजिस्टर्स अपने ले लीजिए, जिसमें आपने याद करके हर चीज़ को जो है वो बार बार लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पहला चैप्टर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इसकी तफसीलात आपसे दूसरे लेक्चर के अंदर डिस्कस की जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।